So good morning to all of you. Yesterday we have started with the chapter surface area and volume. Just intro we have done, and let us continue with the chapter. So I have told you about the solid objects, that is 3D objects, which occupy space, having a definite shape and having a definite size. They are known as solid figures. उनको बोलते हैं solid objects. They are known as solid objects, right? And as far as surface area and volume are concerned, that will be in the case of the solid objects only. So first of all, I have told you the definition of cuboid. Yesterday we have done the definition of cuboid, that it is a 3D figure, a solid, which is bounded by 6 rectangular faces. 6 rectangular faces. Bounded by 6 rectangular faces is known as cuboid. जिसके 6 फेसेस होते हैं, रेक्टेंगल होती है ईच फेस की शेप, दैट इज नोन एज cuboid. Let us make its figure. This is length, this is breadth, this is height. This is cuboid where L length of the cuboid, B breadth of the cuboid and H is the height of the cuboid. ये हमारे पास dimension है, length, breadth and height, right? So यहाँ पे एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, that it is having faces. 6 faces are there for a cuboid. We are having 6 faces. You can see this duster: front face, back face, right face, left face, bottom face and then top face. तो हमारे पास 6 faces हो गए cuboid के, right? Then number of edges. There are 12 edges of cuboid. हमारे पास 12 edges हैं and vertices 8 vertices. Edges क्या होते हैं? Edges where 2 faces meet. ये 2 फेस जहां पे मीट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं edge. तो you can see here edge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 एजेस हैं. आप किसी भी आपके घर में कोई बॉर्डर बॉक्स होगा, उसके साइड वाली लाइनों को काउंट करना. They will be 12 in number. 12 हमारे पास edges होते हैं. Now let us talk about the vertices. Vertices कितनी होती हैं? Vertices होते हैं ये कोने. These are the vertices. How many vertices? 8 vertices are there. So in a cuboid, we are having 8 vertices. Now one thing you have to keep in mind very clearly, that is very important as far as questions of the chapter are concerned, that is that if we are talking about the bottom face and top face, they are parallel to each other. उनकी dimension same. सारे rectangle हैं, चाहे bottom है, चाहे top है, चाहे right है, चाहे left है, चाहे front है, चाहे back है. All the faces they are the rectangular. उनकी shape rectangle है. तो हमने एक बात अच्छे से याद रखनी है, that for the bottom face, if you know bottom face, then definitely you will know the top face as well. So this is the bottom face and it is having 2 dimensions ही होंगी, rectangular. L and B will be included in these 2 faces, length and breadth. Bottom and top में length breadth आपकी जो है include होगी, चाहे वो bottom face है चाहे वो top face है. ठीक है, first thing that you have to remember. Second is we are talking about the right face, इस side वाला B and H. Right and left they are identical.
right and left face they are identical, and B and H will be included in them. B and H will be included in them. And front and back face, ये front face है, इसमें क्या है? L and H. Front and back face, front back face, they include L and H. Bottom top face LB, right left face BH, and front back face they are including LH. उसमें हमारे पास LH आ जाएगा फ्रंट एंड बैक फेस में. चलिए, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन अपने आप याद रखनी. बॉटम की डायमेंशन LB वही टॉप की हो जाएंगी, राइट की डायमेंशन BH वही लेफ्ट की हो जाएंगी, एंड फ्रंट की डायमेंशन LH वही बैक की हो जाएंगी. तो ये आपको डायमेंशंस याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें दे आर वेरी वेरी मच यूजफुल. सो यू विल रिमेंबर दीज डायमेंशंस. बॉटम फेस and top face LB, then BH right left, then HL front and back face. ये चीज याद रखनी है. अगर नहीं याद रहेगा तो आप ये फिगर बना लेना, वहां पे LBH मार्क कर लेना, आपको याद आ जाएगा बॉटम साइड एंड फ्रंट. ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इससे रिलेटेड. आगे चलते हैं. अब आती है बात क्यूब की. क्यूबॉइड की तो हमने डेफिनेशन कर ली, दैट इट इज बाउंडेड बाय 6 फेसेस एंड ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगल. लेट अस टॉक अबाउट क्यूब. क्यूब की अगर बात करें, ठीक है, तो क्यूब में हमारे पास क्या होता है? इन क्यूबॉइड itself will become a cube if all the edges, all the dimensions, that means length, breadth and height, they become equal. That means अगर मैं LB और H को सेम वैल्यू पे ले लूँ, उनकी वैल्यू सेम आ जाए मेरे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे A लिख दिया सबकी जगह पे, then it becomes a cube. So हम लिखेंगे A, this is a solid figure in which is bounded by 6 square shaped faces. इसके जो faces होते हैं that are square. क्यों square होते हैं? क्योंकि सारे edges equal हैं, all edges are equal, सबकी वैल्यू a है. जिस मर्जी एज पे आप चले जाओ वैल्यू सबकी a है, यानी कि all edges are equal. कोई भी फेस आप उठा के देख लो, आप इस फ्रंट फेस को उठाओगे तो इसकी चारों तरफ a होगा, बैक को उठाओगे a, अपर को उठाओगे सारी साइड पे जो एज है वो a होगा. तो इसका मतलब जो क्यूब है दैट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय 6 फेसेस, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग रेक्टेंगुलर फेसेस इट विल बी हैविंग द स्क्वायर शेप्ड फेसेस. तो क्यूब is a solid figure bounded by 6 faces, each face is a square, and ऐसा square जिसकी सारी sides क्या हैं? Equal. Square मतलब ऐसा face जिसकी सारी sides equal है, that means it is a square. Or moreover we can say that if in a cuboid all the dimensions get equal, अगर किसी cuboid में सारी जो dimensions हैं वो equal हो जाएं, if in a cuboid all the dimensions get equal, that means length, breadth, height सारे बराबर हो जाएं, तब हम उसको बोलते हैं क्यूब. When all the sides of all the dimensions, length, breadth, height of a cuboid get identical, gets equal, then it forms a cube. And generally we say that यहाँ पे हम बोलते हैं sides, length, breadth, height. यहाँ पे क्यूब के लिए हम edge word यूज करते हैं, edge of cube. वैसे तो एज उसका भी होता है लेंथ की फॉर्म में, ब्रेथ की फॉर्म में, हाइट की फॉर्म में. यहाँ पे जनरली हर एक साइड को हम एज का नेम दे देते हैं, एंड मोस्टली ए से ही हर एज को डिनोट करते हैं. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड. सिमिलरली नो डिफरेंस बिटवीन क्यूब एज वेल. क्यूब भी जो होता है उसमें भी हमारे पास जो फेसेस हैं उतने ही हैं. नंबर ऑफ फेसेस 6, edges 12, vertices 8. सेम है, 6 फेसेस, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, 6 फेसेस हो गए. वर्टिसेस ये वाले कौन ने? ये 8 होते हैं. तो इस तरह से
हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड के नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस और एंड जो उसके एजेस हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस, राइट। चलिए, तो ये हुआ हमारा दोनों की डेफिनेशन और हमने सीख लिया। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हमने याद रखनी है। एक ये कि जो क्यूबॉइड है उसके फेसेस रेक्टेंगल हैं और जो क्यूब है उसके फेसेस स्क्वायर हैं। पहली बात तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद बॉटम एंड टॉप एल बी, राइट एंड लेफ्ट बी एच, फ्रंट एंड बैक एल एच, ये डायमेंशंस होती हैं। दिस वी हैव टू रिमेंबर वेरी शार्पली, वेरी क्लियरली, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड टू डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। चलिए आगे आइए, आगे हम करेंगे अब अपने चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलाज। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज द नेम ऑफ द चैप्टर। वी विल डिस्कस द टू थिंग्स, one is the surface area, another is the volume of the different solid figures, and out of those solid figures first exercise is related to cube and cuboid. That's why I am firstly discussing cube and cuboid. We are discussing cube and cuboid. अब बात आती है, हम हमारी जो चैप्टर है उसकी डिवीजन कैसे है। फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेस ऑफ द डिफरेंट फिगर्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन, देन स्फीयर, हेमिस्फीयर से रिलेटेड 4 एक्सरसाइजेस में हमारे पास क्वेश्चंस हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के। देन स्टार्ट विद अनदर 4 एक्सरसाइज, वी आर हैविंग द सेम फिगर बट द क्वेश्चन बेस्ड इज आर ऑफ वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले सरफेस एरिया को ही डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम का मैंने कैटेगरी अलग कर दी कि जैसे वो एक्सरसाइजेस खत्म होगी सरफेस एरिया की, देन विल स्टार्ट विद द वॉल्यूम, राइट। अब मैं सबसे पहले सरफेस एरिया ही डिस्कस करूंगी हर फिगर का, वॉल्यूम बाद में करेंगे। चलिए, तो व्हाट इज सरफेस एरिया एक्चुअली, मीनिंग क्या है सरफेस एरिया का। जब तक हमें सरफेस एरिया नहीं पता चलेगा, मीनिंग नहीं पता चलता, हम जो है इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इस पेज ऑफ पेपर को अपने हैंड पे रखती हूँ सपोज, तो इट इज कवरिंग ओनली द एरिया ऑफ माई पाम, ठीक है। इट इज नॉट हैविंग एनी पार्ट ऑफ इट इन द स्पेस में इसका कोई पार्ट नहीं है। बट इफ I place this book on my hand, it will cover the area of my hand as well, and because of its height and thickness it will go above and above, and it will occupy some area in the space as well. So this is the difference between 3D figure and 2D figure. 2D figure is having only area, but 3D figure is having surface area, क्योंकि उसके surface ने स्पेस में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया? टोटल एरिया, टोटल वर्ड मैटर्स, ऑक्यूपाइड बाय अ 3D फिगर, ऑब्जेक्ट या फिगर कुछ भी कह सकते हो, दैट इज नोन एज सरफेस एरिया। क्योंकि ये इसमें हम सारा टोटल एरिया ले लेते हैं, मतलब उसने साइड पे, अपर पोर्शन में, राइट में, लेफ्ट में क्या क्या एरिया कवर किया, टोटल आ जाता है। इसलिए सरफेस एरिया का अनदर नेम टोटल सरफेस एरिया भी होता है। सरफेस एरिया का अनदर नेम समटाइम्स हम टोटल सरफेस एरिया भी लिख लेते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि किसमें आपको सरफेस एरिया का मीनिंग टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया या कुछ और है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले आपको सरफेस एरिया का मीनिंग पता होना चाहिए। टोटल एरिया दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज इट्स सरफेस एरिया, और यू कैन से टोटल सरफेस एरिया। अब पहले मैं इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड में मैंने आपको बताया 6 फेसेस होते हैं। जब मैंने इस बुक को अपनी पाम पे रखा, इट इज हैविंग 6 फेसेस, फ्रंट, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम। तो 6 के 6 फेसेस ने कुछ ना कुछ एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। तो इसका मतलब सारे के सारे, डेरिवेशन नहीं है पर मैं करवाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको सारे के सारे 6 के 6 जो आपके पास फेसेस हैं उनके एरियाज को ऐड करना है। पहले हम टॉप और बॉटम की बात करते हैं। अगर मैं टॉप और बॉटम की बात करूं तो सक्शन ग्रोवर, Yes, ma'am. what will be the area of the top and the bottom face?
L into B. L इंटू बी, बिल्कुल ठीक ठीक बताया, क्योंकि टॉप एंड बॉटम में हमारे पास एल बी इंक्लूडेड है, तो टॉप का एल बी एंड बॉटम का एल बी ऐड हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट फेसेस की, एंड लेट मी आस्क फ्रॉम शांतनु। शांतनु, शांतनु unmute yourself. Shantanu, Shantanu is not going to unmute himself. Vishesh, Vishesh, Vishesh Thapar. Sayam, Sayam. Yes, ma'am. What is the Yes, ma'am. what will be the area of the right and left face? Breadth into height. Breadth into height. That means BH will be added 2 times. Very good. And only one is left, and Rishit से पूछते हैं, उसने hand भी raise किया हुआ है। हाँ जी Rishit. गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक हो गए LH और LH, ये बन गए 2LB plus BH plus HL। Whatever I have asked, only give me the answer of just for that thing. Front और back मैम LH LH आ गया, 2 times LH आ गया फ्रंट और बैक के लिए। चलिए भी अपने आप को अनम्यूट कर लो सभी जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो LB 2LB, BH 2BH and LH 2LH, HL 2HL। Taking 2 as common, you will be having LB plus BH plus HL. This formula you have to remember. How I have done, good if you remember it, but application derivation is not there. आपको formula ही याद रखना। Derivation इसलिए करवाई कि कभी कभी questions ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे derivation important होगी, मैं बताऊंगी कैसे। अभी के लिए आपने total surface area of cuboid याद रखना है 2 LB plus BH plus HL. What is the trick behind to remember is 2 इसलिए क्योंकि डबल है, ज्यादा है, टोटल है, तो 2 मैंने 2 लगा दिया। LB, B पे खत्म, B पे स्टार्ट, BH, H पे खत्म, H से स्टार्ट, HL। तो इसको एज ए रिदम, एज ए पोइम, एज ए जैसे शेरो शायरी करते हैं ना कुछ लोग, वैसे याद कर लो। 2 into LB plus BH plus HL, you'll never forget. So this is the total surface area of the cuboid. ठीक है, अब बात आती है हमारे पास, मैं अभी क्यूबॉइड का डिस्कस कर रही हूँ सारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हो, एवरीवन इज सिटिंग इन देयर रूम, यू कैन इमेजिन दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज द कर्व पोर्शन में जितना आपके एरिया कवर हुआ है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। दैट मीन्स जब आप निगाह घुमाते हो आसपास तो आपको आसपास की दीवारें नजर आती हैं, यू कांट सी द बॉटम, यू कांट सी द टॉप। सो कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ आसपास का कर्व लीनियर जो हिस्सा है वही इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब इसमें टॉप और बॉटम फेस एक्सक्लूड हो गए, बचा कौन? साइड एंड राइट एंड लेफ्ट, दैट मीन्स BH प्लस BH। फ्रंट एंड बैक, दैट मीन्स LH एंड LH। LB का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, टॉप एंड बॉटम का कोई रोल नहीं है। सो दिस बिकम्स 2BH प्लस 2HL। So you take 2H as common, B plus L, and you can say, थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिखते हैं, 2L plus B into H. This is the formula for the curved surface area and lateral surface area of cuboid. आप 8th में भी कर चुके हो सारे फॉर्मूले, just a recalling we are giving to them. 2 into L plus B multiply H, 2 into L plus B multiply H, यानी कि H जो है वो बाहर आएगा कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में, और LB दोनों ऐड होके अंदर आ जाएंगे। 2 into L plus B multiply H will be the curved surface area or the lateral surface area of the cuboid. आपको याद होगा, आप छोटी क्लासेस में करके आए हुए, कर्व्ड सरफेस एरिया का अनदर नेम एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, बैक वॉल, राइट वॉल, फ्रंट वॉल एंड लेफ्ट वॉल, चारों की एरिया को हमने ऐड किया तो वो बना कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप इसका अनदर नेम हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये आपका सेकंड फॉर्मूला क्लियर हुआ। थर्ड फॉर्मूला जो आपने याद रखना है क्यूबॉइड के केस में, थर्ड फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ ऑल द एजेस। चाहे ऑल दी एजेस कह लो, चाहे फिर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कह लो, एक ही बात है।
फॉर्मूला 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि लेंथ ऑफ ऑल एज इसका क्या यूज है, अभी इसका हम इसको क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे एंड ऑल दैट। सो लेट मी गिव यू द लिटिल व्यू ऑफ दिस। ये 12 एजेस हैं, ठीक है। इनकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हम एक एक को स्केल रख के या पेंसिल रख के ये थोड़ा करने बैठ जाएंगे। वैसे इसकी डेरिवेशन होती है कि जितने भी फेस हैं उनका सेमी पेरीमीटर, यानी कि हर फेस में से दो दो फेसिस हमने जो है वो ले लेने हैं। एक लेंथ लेनी है, एक ब्रेड्थ लेनी है, हर एक की एक लेंथ लेनी है, एक ब्रेड्थ लेनी है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ईच एंड एवरी फेस विल गिव यू द लेंथ ऑफ ऑल दी एजेस ऑफ द कीबोर्ड, यानी कितने 12। आंसर क्या आता होता है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, यू रिमाइंड द फॉर्मूला just 4 into L plus B plus H. And where we will use this formula, for example, if the question is like you are having a cuboidal figure, you have to tape its edges. आपको इसके edges की टेपिंग करनी है, आपको इसके edges की टेपिंग करनी है, तो आपको कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ ऑल दी एजेस, उसमें पुट करोगे दैट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द टेप। So whenever you have to put something only on the edges of cuboid, that is called the length of the edges will be used there. So the formula is 4 into L plus B plus H. ठीक है, एक और फॉर्मूला आपने करना है, फोर्थ वन, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ऑपोजिट वर्टिसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास डायगोनल आता है। तो डायगोनल जो होता है, इसकी पहले तो इसका फॉर्मूला सुनो, फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सभी के स्क्वायर्स कर दो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के स्क्वायर्स करके उनको ऐड कर दो, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर किया सारी साइड्स का और उनको कर दिया ऐड, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेयर वी विल यूज दिस डायगोनल फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, डायगोनल का फॉर्मूला यूज करने के लिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आई एम सेइंग कि आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम, आई वांट टू पुट अ रोड इन दिस रूम, तो हम विच मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड आई कैन पुट इन द रूम। तो सम ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे विल डू, दे विल पुट द रोड लाइक हॉरिजॉन्टली, ऐसे रख देंगे, कुछ कहेंगे वर्टिकल रख देते हैं। जिन्होंने हॉरिजॉन्टल रखी मान लो उनकी लेंथ आ गई 12, जिन्होंने वर्टिकल रखी उनकी लेंथ आ गई 12। एक बच्चे ने सोचा नहीं मैं रोड को डायगोनली पुट करूंगा, यानी कि यहाँ से उस वर्टेक्स से लेके उस ऑपोजिट वर्टेक्स तक मैं रोड को पुट करूंगा। तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी, जो डायगोनली रखेगा उसकी, डायगोनल की लेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी उस केस में। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, दिस वी विल यूज इफ द क्वेश्चन इज लाइक what is the maximum length of the road that can be put in the cuboidal room। cuboidal room में मैक्सिमम कितने लेंथ की रोड आप पुट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल लिखना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज द मैक्सिमम लेंथ of an object that can be placed in the room। क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ। विषमजोत, हाँ जी, what do you want to ask? Hand has been raised by you। Ma'am, how can we derive the formula for the diagonal? डायगोनल के लिए फॉर्मूला डेवलप करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने पड़ेंगे डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल्स में, so then you will get it, there is no need of derivation, that's why I skipped that, right? हाँ जी, then Rishit, मैम ये speak up। जसलीन, मैम ये जो फॉर्मूला लिखा है डायगोनल्स का, इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको ब्रैकेट में इकट्ठे करके इनका इकट्ठे स्क्वायर नहीं कर सकते, अच्छा फिर स्क्वायर के साथ रूट काट। I can say this is मतलब what kind of question you are asking me, just tell me if you do the calculation like this and you do the calculations like this, is there any difference? A lot of difference, बहुत डिफरेंस है, तो इकट्ठे करके स्क्वायर कैसे कर दोगे? Am I clear, Rishit?
यस मैम। तस्लीन, हाँ जी, आप पूछो अपना क्वेश्चन। मैंने कहना था जो आपने भी डायग्नल वाला बताया, ये कहाँ पे लगना है, फिर से बता दो मुझे। ये क्या, कहाँ पे? कहाँ पे लगना है ये वाला फॉर्म? हाँ मैं बता रही हूँ ना, जहाँ पे आपने लेंथ ऑफ दी रोड, maximum length of the road that can be put in the longest road, you can say longest road that can be put in the cuboidal room। आपने अगर longest road निकालनी हो तब आपने diagonal का फॉर्मूला लगाना है, because diagonal is the having the maximum length than that of horizontally and vertically placed road। Am I clear, Cecile? Yes, thank you. चलिए, these are the 4 formulas based on the cuboid which you have to remember। चलिए अब चलते हैं क्यूब की तरफ। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, length of all the edges and length of the diagonal। टोटल सरफेस एरिया 2LB plus BH plus HL, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 into L plus B into H, length of all edges 4 into L plus B plus H, length of the diagonal L square plus B square plus H square। ये है हमारा सारी थ्योरी क्यूबॉइड की, निकल के आई जो हमारे सामने। अब हम बात करेंगे क्यूब की। क्यूब के फॉर्मूले क्यूबॉइड के फॉर्मूले से ही डिराइव हो जाएंगे, अदरवाइज यू नो क्यूबॉइड के, क्यूब के कितने फेसेस? 6 फेसेस, हर एक फेस स्क्वायर। एच अगर हम ए लें तो हर एक फेस का एरिया ऐड होगा ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। हाउ मेनी टाइम्स? 6a स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को क्यूब के फॉर्मूले भूल गए हैं, क्यूबॉइड के याद है, तो उसके लिए एक तरीका होता है, वो क्यूबॉइड में एल बी एच की जगह ए पुट कर दे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 बिकम्स 6a स्क्वायर। वैसे ऐसी बात नहीं है कि हमें डिराइव करने पड़े, हमें याद रहेंगे इतने फॉर्मूले। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वही बात, 4 साइडों के एरिया ऐड होने हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर becomes 4a स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो एल बी एच की जगह पे ए इन ए प्लस ए 2a इंटू ए 2a स्क्वायर इंटू 2 4a स्क्वायर। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर, लिटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। लेंथ ऑफ ऑल द डायगोनल, जहाँ पे एल बी एच है वहाँ पे ए कर दो, 4 इंटू ए प्लस ए 4 इंटू 3a दैट इज 12a। दिस इज लेंथ ऑफ ऑल द एजेस। डायगनल की बात करें तो डायगनल हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एल बी एंड एच की जगह पे पुट कर दो अपना ए, तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर जब स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा ए बन जाएगा। This is root 3a. So these are the 8 formulas which will be applied in the questions related to exercise 13.1. So it should be in your mind, पूरी तरह से अपने दिमाग में इन formulas को बिठा लो कि हमने इनको कैसे लर्न कर रहा है, कैसे ये आए हैं। कुछ theories जो मैंने बताई है इनकी derivation के related, that is also very important. Hope so that you all are taking care of yourself to save yourself from COVID-19 and taking proper precautions, and you are not avoiding any kind of cure that is required to avoid this disease। and बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ने हमें एक दिया भी है, कल परसों एक नारा भी दिया हुआ है कि जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं ढिलाई। ठीक है, until or unless medicine is not produced, we will not take any kind of things, any kind of doings we will not do which will harm to our health, which will be a loss to our family or our society or our nation। So you all are very much responsible children and I hope that you are taking care of all these things। चलिए, तो ये 8 formulas हमारे पास हमारे सामने हैं, याद रखना।
जब तक नहीं दवाई तब तक नहीं ढिलाई। चलो अब हम इन क्वेश्चंस पे बेस्ड, अब मैं फॉर्मूलाज और बाकी फिगर्स के भी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हैं, जैसे कि कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग इट ऑन द होल। वी विल डिस्कस them exercise wise and we'll keep them in our mind. चलिए 13.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। Exercise 13.1. First question we are going to start with of 13.1, and the question is, a plastic box 1.5 meter long, length है box की 1.5, breadth है 1.25, and height h है 65 centimeter. Maximum things are in meters, so let us convert this centimeter into meters by dividing it to 100. 100 से डिवाइड करके हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ गई। लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर एंड हाइट इज 0.65 meters. Question is, it is opened at the top. इस बॉक्स को बनाने के लिए उसने एक पीछे कंडीशन लगा दी that it should be opened at top. That means it is not having any kind of lid. Lid नहीं है इसका, ढक्कन नहीं है, ठीक है ना, बिना ढक्कन के है बॉक्स। तो he says ignoring the thickness. थिकनेस इग्नोर करने का क्या मतलब होता है कि जैसे ये है आपके ब्लैक बोर्ड की ये जो साइड है इसमें ये थिकनेस है, आप इसकी लेंथ जो है वो दो वे से देख रहे हो, एक आगे और फिर थोड़ी सी थिकनेस के बाद पीछे। तो थिकनेस को कहता है अवॉइड कर दो, हम थिकनेस को नहीं इन्वॉल्व कर रहे क्योंकि थिकनेस में भी तो प्लास्टिक लगेगा ना, इसलिए उसने थिकनेस को इन्वॉल्व ही नहीं किया। हमारे क्वेश्चन में जो है थिकनेस उसका पार्ट ही नहीं है। ही सेज ignoring the thickness of the box, find the area of the sheet which is required to make the box. Area of the sheet required to make the box. चलिए स्टार्ट करते हैं। Area of the sheet required to make the box is equal to, अब राइट एंड लेफ्ट वाले दोनों फेसेस आएंगे, या दैट मीन्स BH प्लस BH। फ्रंट एंड बैक वाले दोनों फेसेस आएंगे, दैट मीन्स HL प्लस HL। कौन सा फेस सिर्फ एक बार आएगा, पूछते हैं किसी से, चाहत से पूछते हैं। चाहत 9th D, 9th D रोल नंबर 6 चाहत। बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। चाहत 9th C। Yes, ma'am. Who is speaking? 9th D or C? I'm 9th D. 9th D. Chahat. Chahat, you tell me that while we are making this box, we are having right and left face side faces. We are having a front and back face. Which face will not be included? Ma'am, top one. Top face will not be included. Why top face will not be included? Ma'am, because they're talking about it is opened at the top. It is opened at the top. So फिर चाहत क्या लिखना चाहिए हमें? BH plus BH plus HL plus HL plus Plus. क्या लिखना चाहिए? BH plus BH plus HL plus H। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि टॉप फेस शुड नॉट बी Plus LH. प्लस LH और HL में कोई फर्क है? वही तो बात है, टॉप और बॉटम की जब तक डायमेंशंस ही नहीं याद रहेंगी तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। जब तक आपको फेसेस की LB only LB will be written single time because top open from the top. So BH plus BH 2BH, HL plus HL 2HL plus LB। 2 मैंने इसको इसके लिए ऐड कर दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए।
आप सीधा भी लिख सकते थे 2 बार BH ऐड होने हैं 2BH, 2 बार HL ऐड होने हैं 2HL एंड सिंगल टाइम LB विल बी रिटन। LB जो है वो हमारे पास सिंगल टाइम में आएगा। नाउ लेट अस रिप्लेस द वैल्यूज। 2 into 1.25 into 0.65 plus 2 into HL. H is 0.65 and L is 1.5 and LB 1.5 into 1.25. जो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा that you will write here. जो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा will be written here. और जो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा will be written here. Calculations I will send to you. Here I will write the direct answer without calculating. So आपके पास इन सबको कर आके आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर. Adding up will be 5.45 मीटर स्क्वायर. तो आपके पास इनको ऐड करके 5.45 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना प्लास्टिक जो है that is required to make this box which is opened at the top. Second part that we had to do, cost of the sheet measuring 1 meter square cost is rupees 20. 1 meter square cost का जो cost है, 1 meter square sheet का जो cost है that is 20 and what will be the cost of this much meter square cost. इतने मीटर स्क्वायर का क्या कोस्ट होगा वो हमने देखना है. 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट हमें दिया हुआ है और इतने मीटर स्क्वायर का कोस्ट जो है वो हमें निकालना है. तो ये इस चीज का आपने एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कोस्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मीटर स्क्वायर. दैट्स वाई जो फर्स्टली हमारे पास डिमेंशन एक सेंटीमीटर में थी, मैंने उसको मीटर में किया था. मैं कर सकती थी मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मीटर वाले को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन बेटर होता है देन दैट ऑफ डिवीजन. तो आपने उसको क्यों नहीं किया? रीजन यही था कि जो कोस्ट है वो मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली है, सो एवरीथिंग शुड बी इन द मीटर. सो हम लिखेंगे कोस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, कोस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20. तो हमें 5.45 मीटर स्क्वायर के हिसाब से चाहिए. तो कॉस्ट फॉर 5.45 मीटर स्क्वायर जितना कि बॉक्स पे प्लास्टिक लगना है, ₹109. तो ये आपका ₹109 आ जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट विद टुडेज लेक्चर. सो just revising the formulas very carefully, and tomorrow when we'll start with the lecture I will ask you the formulas first.